अब सोशल मीडिया की बात करते हैं और एआई की बात करते हैं, क्योंकि उस पर चर्चा काफ़ी हो रही है आजकल। सोशल मीडिया आपकी लाइफ में कितना है, क्योंकि आप उन एक्ट्रेसेस की तरह नहीं है जो रेगुलर अपडेट्स डालते हो इंस्टाग्राम पर, या अभी मैंने डाला था ऑफ योर प्राइवेट लाइफ। अभी मैंने डाला था कुछ पिछले से पिछले हफ्ते 72 आवर्स इन द लाइफ ऑफ हुमा कुरैशी। तो मुझे मेरे मैनेजर ने बोला प्लीज़ बंद कर दो, लोग चकरा के गिर जाएंगे, बिकॉज आई थिंक इन 3 days we did some 4 flights and it was quite chaotic, and 2 film sets and an event and a red carpet, and it was just madness. सो सोशल मीडिया, ये जया बच्चन का अभी कुछ रिएक्शन रहा है पैपराजीज पर, इस तरह के रिएक्शंस को आप कैसे देखती हैं? आपको लगता है इवन पैप्स आर डूइंग देयर जॉब? Everyone is doing their job and it's an ecosystem. मुझे, मैं पैप्स के ऊपर स्पेसिफिकली कमेंट नहीं करूँगी, बट मुझे लगता है कि अगर हम पूरी मीडिया को एक एज अ होल देखें, हम एक ऑडियंस को भी एज अ होल देखें, डेफिनेटली आई थिंक वी ऑल हैव अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टॉक टू ईच अदर अ सर्टन वे, एक सर्टन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट बना। व्हेन यू एंड आई हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, एंड हो सकता है कि वी डिसएग्री ऑन समथिंग, you know, or ho sakta hai I want to get some information, like for example you're doing an interview with me, you want me to say something nice, right? That is your job, otherwise you wouldn't be a good journalist. But if you start asking questions in a way that's an invasion of my privacy, or that is making me feel uncomfortable, or if I'm wearing a dress, you're trying to get an angle in my dress which is not nice, those are lines I don't think people should cross, and sometimes we do cross those lines. It is a known fact. I'm not saying anything that is not new. You know, as a woman, as a female actor, I have experienced that, where I'm in a press conference and somebody has asked a very inappropriate question. And I remember when I was younger, तो मैं बहुत सहम जाती थी कि यार क्या बोलूँ अब, ये अगले दिन ट्रेंड हो जाएगा, and what will people say. Today I feel I can call out and say, excuse me, that's disrespectful, sir. Please don't, or ma'am, or don't speak to me like that. And I feel कहीं ना कहीं this conversation is healthy, कि ना तो आप, मेरा तो बहुत सिंपल मानना, देखो ना बदतमीजी करो और ना होने दो, करेक्ट है? There's a clap for this. Yeah, thank you. No, but it's because I think it resonates with So people. what is your equation with paparazzi? I have a very healthy equation with them. I feel they are important in the sense that, you know, I mean, we use them, yeah, when we have to promote our films or we want some aspect of our life to get out there. Let's not lie. So many times of film promotions, we call them for our premieres, when we want to get spotted at a particular event and all of those things. So I wouldn't throw them under the bus. And personally, I have a decent relationship with them. There have been so many times if I'm not looking good or not dressed up, and said, अच्छा ये फोटो मत खींचना please. तो बहुत दफे ये भी होता है, वो बोलते हैं कि अच्छा मैम नहीं खींचेंगे, कोई बात नहीं आप जाओ. But that is my individual experience. Not to say that back in the day, I have not had but also see, you have to understand ना, मेरे को अभी 10-12 साल हो गए काम करते करते, तो ये मेरे भी रिश्ते हैं कुछ. बट हो सकता है किसी के साथ वो रिश्ते ना बन पाए, या कोई इंसान अपनी इनसिक्योरिटी, अपने किसी स्पेस से आ रहा है. मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैंने, मतलब अगर कोई ड्रेस पहन के somebody is trying to get a, you know, shot of me, that has also happened. But now I feel empowered enough to question it and to stop it. A lot of people perhaps don't. Or a lot of people don't like the fact, they say, my mother is there. You know, she's of a certain age. I don't know how she will respond if somebody is asking her personal questions or whatever with a camera on her face. लोग हड़बड़ा जाते हैं, you know, and they don't know how to respond. 25 कैमरे आपके मुंह पे आते हैं और लाइट जलती है. I've seen अच्छे के मैंने पसीने छूटते देखे हैं. So आपको लगता है कि you have to just be little mindful of these things. So paparazzi should only focus on you, not your family. मतलब वो जो है सेलिब्रिटी आप हैं तो आप पे फोकस रहना चाहिए, फैमिली को क्यों इन्वॉल्व करो? ये आइडियलिस्ट स्टेट होगा, बट ऐसा शायद हो नहीं सकता, बिकॉज आई थिंक पीपल आर क्यूरियस अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एन एक्टर्स लाइफ, एंड इट इज़, आई थिंक आई हैव मेड माई पीस विद इट. इट कम्स विद द टेरिटरी. बट नो, मैं वापस घूम के उस बात पे आती हूँ कि कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, आई थिंक वी ऑल हैव अ स्पेस इन सोसाइटी. एक अगर आप दायरे में रह के चीज़ें करें तो आई थिंक देयर स्पेस फॉर एवरीवन टू डू व्हाट दे आर मेंट टू डू. दैट्स ऑल. और एक, इज देयर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू बी इन सर्टेन ब्रैकेट्स इन बॉलीवुड, टू बी एक्सेप्टेबल, और एक जो
जो हेजिमनी बोला जाता था एक ज़माने में, तो वो सब क्लब्स का एक्सेप्टेबल होना चाहिए। हम तो किसी क्लब में नहीं है। सॉरी, नहीं यार, आई हैव नेवर बिन पार्ट ऑफ एनी क्लब और एनी क्लीक और एनी व्हाटएवर। शायद इसलिए शायद इतना समय लग गया, पता नहीं। लेकिन 10-12 साल हो गए हुमा, एंड यू हैव बीन स्टिल अराउंड एंड यू कंटिन्यू टू डू सम ग्रेट वर्क। Because I do believe कि the only thing in my hand is my own talent, and I'm very patient. I'm an extremely patient human being. मुझे कल इस देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार नहीं बनना है। मुझे काम करना है, अच्छा काम करना है, और अगर मेरी किस्मत में जो बनना लिखा होगा वो ऊपर वाला और ऑडियंस मुझे बना देगी। सो आई एम नॉट इन एनी काइंड ऑफ हसल कि मुझे किसी कूल ग्रुप का हिस्सा बनना है। मैं स्कूल में भी कभी ऐसी नहीं थी कि मुझे कूल बच्चों के साथ हैंग आउट करना था। नहीं, जो मेरे दोस्त होंगे वो मेरे दोस्त होंगे। अगर आपको कूल लगते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर मेरे कोई ऐसे तो स्टारडम का क्या डेफिनेशन है? सो अगर आप बोलती हैं कि 10 से 15 साल अभी और काम करना है, तो एम क्या है? कुछ तो होगा ना कि इसकी तरह बन के दिखाना है। इतने सक्सेसेस के बाद भी इफ यू हैव दैट फायर इन द बेली, और शुड आई से हंग्री, यू आर हंग्री फॉर मोर, तो कुछ सोचा है आपने? हाँ, बट किसी की तरह नहीं बनना है, किसी के जैसा नहीं बनना है, खुद से compete करना है। और मुझे लगता है कि मैं बहुत अलग अलग तरीके का काम और कर सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं रिटायर हूँ, एक बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी हो जिसमें मेरी अलग अलग फिल्मों के बारे में लोग बात करें और बोलें कि अरे देखो उसने ये भी फिल्म की थी और वो भी किया था, और इसमें बायोपिक में इसने ऐसा रोल किया था, यू नो, रानी भारती प्ले किया था या हरियाणवी कैरेक्टर प्ले किया था। आई जस्ट वॉन्ट दैट फॉर माई सेल्फ। आई डोंट वॉन्ट, एंड दैट इज़ माई ओन फाइट, माई ओन competition with myself, not with anybody else. I don't care if, you know, some like I don't care to be part of any club if, you know, or whatever. क्योंकि मैं आपको थिंकिंग एक्ट्रेसेस के कैटेगरी में रखती हूँ, तो इसलिए मैं ये आपसे बड़ा सेक्सिस्ट चीज बोली वैसे आपने पहली बार। एक्टर्स, All actresses think. so why has Indian film industry not seen a Meryl Streep kind of someone who can think and speak their mind out? I didn't understand, sorry. Again? Missing Meryl Streep of Indian film industry. But why should we have a Meryl Streep? We have so many actresses who are doing wonderful, wonderful things in India, you know, and they do some wonderful work, and we should see them for who they are. We have a Shabana Azmi, we've had a Smita Patil, you know, we have a Shefali Shah, we have so many. We have a Radhika Apte, I don't know, we also have a Deepika Padukone, we have also an Alia, but we have all of these wonderful women who are doing amazing work, and they are who they are, and we should appreciate them for who they are. I have just 10 seconds for you. So 2026, one word. One word. I don't know, more work. मेरे को किसी ने बोला था, देखो तुम्हारे ना हाथ में सिर्फ क्या कहते हैं, what do you call it मम्मा, कर्म योग है, राजयोग नहीं है, तो सिर्फ काम ही करना लिखा है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हुमा कुरैशी। All the best, lots of success for you. That's all I wish for you. Thank you so much. Always Thank lovely you. chatting Thank with you. you. Thank you all.